Namaste. My name is Doyal, and welcome to another episode of Sutra Talkies. The guest that we have today is a very cherished and notable alumni of Sutradhar. He is an embodiment of Vinay Sir's teaching, and it is an honor for us to have him here. He has acted in many films across Bollywood, Tollywood, and he has lent his voice in more than 3,000 voiceover projects. I introduce to you Mr. Sandeep Ved. Hey, thank you very much for having me here. Thank you for coming to the show, sir. My pleasure, my pleasure. It's like coming home for me. Coming back to my alma mater. So, when did you join Sutradhar? Was it 10 to 15 years back? Oh, Sutradhar, I think it was in 2003. 2003. It was my birthday when I joined Sutradhar. Okay. Yeah, not too many people know this, but it was on my birthday that my father and I came and we spoke to Vinay Bhai and paid the fees for my first acting workshop. How was your interview like? I'll tell you what, Vinay Bhai has grilled so many people in front of me that I felt my interview was a cakewalk. Okay. I'll tell you what happened. I had gone to another acting teacher called Akram Shah. Okay, I'm not sure if I want to mention his name here, but I had gone to another acting teacher. And when I took my father there, my father came out saying, this guy is a con man. We are not going to him. Okay. I was very upset with him. Come on, this guy is saying he'll place me in Bollywood and all of that, and then my father said, this guy is not. Okay. And then I came across Sutradhar's poster in my college. I used to study in St. Mary's College and I saw Sutradhar's poster. And then I went and I met Vinay Bhai alone. Okay. And I told him, वो acting करने की है और modeling करने की है. Modeling करते हैं. कौन मॉडल बड़ा एक्टर बना बताओ जरा. एक ही आदमी है जॉन अब्राहम बना. उसके अलावा कोई बना पड़ा. एक्टिंग बोले तो एक्टिंग करना, मॉडलिंग अलग रहती है. तुम्हारे को मॉडलिंग करने का तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू. लेकिन एक्टिंग करने की है तो वी कैन मेबी टीच यू अ लिटिल बिट. सीख लेता हूं. एंड then when my father also came, it was a very smooth process. And what he told my dad was that the one thing I liked about your son is that when he was a little late also, he messaged and said that, I'm running a little late, I'll be there. In 2003, SMS? SMS. So he said, time की कदर करने वाले बहुत कम है sir. आपके बेटे को time की कदर है. And he has some potential, so I'll take him in. And the rest is history. उसके बाद मैं बहुत कम बार टाइम पे आया. I was not the most punctual student of his, but then he was gracious enough to bear with me and knock some sense into me and mold me into whatever I became. Okay, sir. Let's go back to even an earlier time. How were you as a child? Were you introverted or extroverted? What was your childhood like? And when did you know you wanted to be an actor? अरे वो तो मतलब आई थिंक मैं पैदा ही हुआ था और एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी. मैं बहुत ड्रामेबाज बच्चा था. Okay. एंड बचपन में भी मुझे याद है I was 4-5 years old when I used to watch a lot of television. महाभारत, रामायण, रीरन्स देखना उसके. और 6 साल की उम्र में मैंने पहली फिल्म देखी अजूबा थिएटर में. काले चश्मे लगाकर गया था पिक्चर देखने. स्वैग 6 साल का था. स्वैग है उसमें. वो पिक्चर देखी मैंने. I said यार अब यही करना है. So as a 6-year-old आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि यार ठीक है बच्चा है. बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं. बड़ा होगा तो समझ आ जाएगी उसको. लेकिन समझ कभी आई नहीं. और उसके ठीक 10 साल बाद मैं 16 साल का था जब मैंने बोला कि नहीं यार यही करना है मुझे. And I think it was my 17th birthday when I joined Sutradhar. Your parents were supportive. They didn't mind. Yeah, I think they initially thought I'll take it up as a hobby. Okay. And they still thought I will pursue family business alongside or stuff like that. But when they saw how serious I was and बाकी कामों में कितना निकम्मा था, ठीक है यार और तो कुछ कर नहीं रहा है, यही कर रहा है ठीक ठाक तो कर ले. And I think वो हिंदी में कहावत है ना कि वो पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं. तो कहीं उनको लगा कि भाई ये है कुछ तो कर लेगा. They encouraged me and supported me. I think that's very important कि भाई तुम जो करना चाहते हो करो, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ. वो बोलना बहुत जरूरी है. मैं ऐसे कई पेरेंट्स होते हैं जो ये बोल देते हैं कि ठीक है अब जो करना है कर लो. कि इट वाज नॉट जस्ट जो करना है कर लो, तुम करो हम खड़े हैं. वो फर्क था. एंड आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ set of parents who were supportive and were proud of what I'm doing.
Very nice. I'm happy for you. डोंट कॉल मी सर, सर बहुत शरीफ सा लगता है, कॉल मी संदीप। सर आदत से मजबूर है। आई नो। Okay. विनय भाई ने भी यही आदत हमको मतलब लिटरली मार मार के ठीक करवाई कि सर कौन है भाई यहाँ पे? मुझे भी बोलते रहते हो। सर नहीं बोलना, वो भाई बोलना। And I think that's very important. Just the change of that one word कि हेलो बोलने की जगह नमस्ते बोलो, सर बोलने की जगह भाई बोलो, वो ना एक बॉर्डर, एक बाउंड्री ब्रेक कर देता है आपकी। आप ज्यादा घुलते मिलते हैं, आप ज्यादा अपनेपन के साथ रहते हैं। तो I think that's something that's been taught to me and I still follow. I will try my best, भाई। जी। So भाई साहब, आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? I mean, I've gone through your Instagram and you're so fit. आप हमेशा like gym workouts. I think you were traveling to Italy and even then you managed to get in a workout. So how do you manage that, sir? Don't you like how do you balance it? सबसे पहले सर नहीं संदीप बोलो चलेगा, भाई साहब भी मत बोलो, संदीप चलेगा। तो नहीं यार, मैनेज क्या करना होता है? देखो ऐसा था कि जब मैं सूत्रधार में था ना, मुझे बहुत ज्यादा ताने मिलते थे इस बारे में, क्योंकि मैं बहुत आउट ऑफ शेप था। संदीप बहुत बेडौला है, ऐसा कई बार सुना है मैंने, ना सिर्फ विनय भाई के मुंह से बल्कि आसपास के कई लोगों के मुंह से। तो मैं एक्चुअली बहुत आउट ऑफ शेप था, बहुत फूडी था और अपने कामों में बिजी। आपके पास फिटनेस के लिए टाइम कहाँ है? बिकॉज फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट दैट 1 hour इन द जिम, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट यू डू इन द रिमेनिंग 23 hours। तो 24-25 की उम्र तक तो मतलब मैंने काफी लाइट लिया, जैसे हम हैदराबादी में बोलते हैं। लेकिन फिर जब समझ में आया कि भाई आपको अगर एक्टर बनना है और अगर स्क्रीन पर ढंग का दिखना है तो आपको एक लेवल की फिटनेस तो चाहिए। तो मैंने शुरुआत की थी और ये नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे तक जाऊंगा। शुरुआत में बस ये सोचा था कि कुछ वेट लूज करना है और कुछ शेप में आना है। बट अब एक बार जब आपको उस चीज की लत लग जाती है ना, तो फिर वो इट इज लिटरली योर बिगेस्ट एंड योर बेस्ट पॉसिबल एडिक्शन। तो फिर मैं दुनिया में जहां भी हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, कोशिश यही होती है कि दिन का 1 से 1.5 घंटा निकाल कर एक वर्कआउट किया जाए। और उसके अलावा जब आप कहीं बाहर जाते हैं खाने के लिए या घर पर खाते हैं तो एक तमीज से खाया जाए कि आपके मैक्रोस ठीक होने चाहिए, आपकी डाइट में ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए। तो ये तो है, ये थोड़ी तपस्या है, करनी पड़ती है। आपका तपस्या, इट इज बेयरिंग फ्रूट। उम्मीद तो यही है। What's your daily routine like, Sandeep ji? I don't think there is any set routine that I can say that I have. Okay. Because हम एक्टर्स का तो यही होता है कि जब काम होता है तब बहुत काम होता है, जब नहीं होता तो कोई काम नहीं होता। तो मैं on a shoot day तो then it's early in the morning at 6 a.m. 7 a.m. और then it's a night shoot, तो फिर आप दिन में सो रहे हो और रात में शूट कर रहे हो। तो आपका सिस्टम, आपका रूटीन, इट ऑल जस्ट गोज आउट ऑफ द विंडो। तो मेरा कोई सेट रूटीन नहीं है, बट आपको मैं आमतौर पर मेरा दिन बताऊं तो शुरू होता है मेरी बेटी को स्कूल भेजने से। तो सुबह के 6:45 से आप उठते हो, फिर उसको बार बार बुला रहे खाना खाओ, फिर तैयार करो, फिर बस स्टॉप पे छोड़ो। उसके बाद आई ट्राई टू स्लिप इन क्विक वर्कआउट इन द मॉर्निंग ओनली। या तो आपने थोड़ा कार्डियो कर लिया, या मैंने किक बॉक्सिंग क्लास भी शुरू की है, तो the instructor comes and I do a kickboxing session. Okay. And then the day starts. Then there is since I'm also a voice artist, then recordings start coming in. In fact, अभी यहाँ पहुँचा, उसके just पहले एक recording last minute में आई थी, वो खत्म की। Okay. अभी यहाँ मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो एक और मैसेज आया, प्लीज शेयर योर सैंपल्स। तो वो चलता रहता है, सो इट्स ऑलवेज ऑन द गो। तो जो लोग इस इंडस्ट्री से नहीं है उनको ये समझा पाना और इसकी आदत डलवाना बहुत मुश्किल है। जैसे मेरी अभी जो वाइफ है वो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से है, तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि एक्टिंग इंडस्ट्री काम कैसे करती है। वो भी आपकी तरह पूछी थी आपका रूटीन क्या है। तो रूटीन कुछ नहीं होता हमारा। हम फ्राइडे नाइट को बैठे नेटफ्लिक्स कर रहे हैं और सडनली एक मैसेज आता है कि अर्जेंट रिकॉर्डिंग है, अभी करनी है। तो मैं रात को 11:30 बजे अपना, मेरे पास होम स्टूडियो है, 11:30 बजे मैं होम स्टूडियो खोल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वो परेशान कि फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट कौन रिकॉर्डिंग करता है। उनके लिए तो वही होता है ना, फ्राइडे आफ्टरनून इवनिंग के बाद जो दुकान बंद होती है वो मंडे मॉर्निंग खुलती है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हमारी दुकान जब चाहे हमको। एंड अब शायद उसको थोड़ी आदत लग गई है कि हाँ ये इसे कभी भी बुलावा आ सकता है। और बट द फॉर्चुनेट पार्ट इज कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। मैं बस अपने होम स्टूडियो में जाके वहीं से रिकॉर्ड करके आधे घंटे में, 15 मिनट में आई कैन गेट बैक टू रेगुलर लाइफ। Okay. So I'm a classical dancer, and we have to keep maintaining our body conditioning. We have to keep practicing. It's sort of riyaz.
So you being a voice artist and an actor, do you have any riyaz as such, and could you walk us through it? आई टेल यू, ये चीज मैंने फिर भी विनय भाई से सीखी है। वो मुझे याद है जब हम लोग प्ले करते थे साथ में, तो वो बोलते थे कि मैं जब एक्टिंग करता हूँ ना, तो ही ऑल्सो एक्ट्स एंड ही ऑल्सो डायरेक्ट्स। तो कहते थे जब मैं एक्टिंग करता हूँ और उसी शो को डायरेक्ट भी करता हूँ ना, तो मेरे एक कैरेक्टर का जो भार है वो मुझ पे कम हो जाता है। मुझे पता है कि मैं एज एन एक्टर नहाते नहाते भी डायलॉग याद कर रहा हूँ, तो या फिर मैं कुछ भी, मैं खाना भी खा रहा हूँ तो मैं अपने रोल के बारे में सोच रहा हूँ, मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ तो मैं अपने डायलॉग्स याद कर रहा हूँ। ये चीज मैंने उनसे सीखी। तो मेरा एज सच कोई रियाज नहीं है कि मैं सुबह उठ के इतने बजे से इतने बजे तक वॉइस पर काम करूंगा या अपने एक्टिंग पर काम करूंगा। मेरे लिए हर चीज एक्टिंग है। मैं अगर आपसे बैठा अभी बात भी कर रहा हूँ तो मैं आपकी मैनरिज्म्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपके कैरेक्टर को समझ रहा हूँ, और कहीं शायद उसको इनकॉर्पोरेट कर लूँ कहीं पे, और ऐसा कई बार हुआ है। आप ऑब्जर्व करना और इम्प्रोवाइज करना इज समथिंग दैट हैज बीन टॉट टू अस, एंड वी डू दिस लाइक ब्रीदिंग। एंड व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिकली वर्किंग ऑन माय वॉइस, आई थिंक द बेस्ट टाइम दैट आई रिहर्स इज व्हेन आई ड्राइव। ओके। आप बॉम्बे में हो, हाँ। आपकी छोटी से छोटी ड्राइव भी आधे घंटे की होगी। Yes. तो बॉम्बे की ट्रैफिक का एक एडवांटेज ये है कि कुछ रिहर्सल टाइम मिल जाता है, तो आप अपनी वॉइस की एक्सरसाइजेस कर लें, आप बेस एक्सप्लोर कर लें, आप हाई नोट्स एक्सप्लोर कर लें, तो चलता रहेगा। So Vinay sir always keeps saying this quote, agar if you understand how to breathe, you know how to act. Did you figure that out? Because I'm still clueless about it. I think being clueless is good, because when you're clueless, you're still trying to figure it out. And it is a process of figuring it out throughout life. I think जिस दिन आपको लगा कि आपने सब सीख लिया है, that's the end of your journey, and you don't want to do that. But yes, definitely, breathing का फायदा मुझे एक्टिंग के साथ साथ वॉइसिंग में भी काफी हुआ है, और एक म्यूजिक की समझ, हमने बीट्स पर भी काफी काम किया हमारी वर्कशॉप में। तो ऐसा कई बार होता है, और मेरी फैमिली मुझसे हमेशा इस मामले में थोड़ी सी अचंभित रहती है कि मैं किसी भी चीज का गाना बना लेता हूँ, क्योंकि आपको बीट की समझ है। हमारा एक मोनोलॉग है रघुनाथ जी का, आपने भी किया होगा वो, मैं शराब पीते वक्त कोई भी रिस्क नहीं लेता, इस कान की खबर उस कान को नहीं होती। तो हमारी एक एक्सरसाइज थी, इसका गाना बना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना बोलते क्या यार, इसका गाना कैसे बना सकते हैं, इट्स इसमें कोई बीट नहीं है, कोई रिदम नहीं है। तो मुझे याद है मेरी एक दोस्त ने बोला था कि तुम बताओ कैसे बना सकते हो गाना इसका। मैंने कहा कोई भी गाना दे दो मैं बना दूंगा। कहते तुम्हारा फेवरेट गाना बना। तो तब रंग दे बसंती रिलीज हुई थी। मैं शराब पीते वक्त कोई रिस्क नहीं लेता, मैं शराब पीते वक्त कोई रिस्क नहीं लेता, मैं शराब पीते वक्त ऑफिस से घर आता हूँ, काली अलमारी से मैं दारू नहीं। तो ये मैंने आधा पूरा मोनोलॉग ऐसे गा दिया, और तुरंत गाया, एक्सटेम्पोर गाया। तो समझ में नहीं आया उसको कि वो क्या बोले, कहते जाओ तुम ही करो, फिर मैं नहीं करती। बट ये एक कहीं से आपको एक म्यूजिक की रिदम का एक गिफ्ट भी मिलता है, और आप उस पर काम करते हो तो इट गेट्स अ लिटिल मोर शार्पन्ड एंड देयर इज फिनिश इन दिस। तो ये है कि आपको बीट समझनी है, आपको सांस समझनी है, कि अब आपको लंबी सी लाइन बोलनी है बिना पॉज के, तो आप कहाँ सांस लोगे, और कौन सा कैरेक्टर है, गुस्से में कैसे सांस लेगा, प्यार में जब बात कर रहा है तो कैसे सांस लेगा, और उसकी बॉडी कैसे चेंज होगी उसकी ब्रीदिंग से। ये आई थिंक कैरेक्टर दर कैरेक्टर, एक्सपीरियंस दर एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं। बट ऑनेस्टली सबसे बड़ी चीज है ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जब आम आदमी नॉर्मल तौर पे अपनी लाइफ में बात कर रहा होता है, तो उसकी ब्रीदिंग अपने आप चेंज होती है। हमें जब कॉन्शियसली करना होता है तब हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप अगली बार नोटिस कीजिएगा, आप किसी को गुस्सा कर रही होंगी तो आपकी ब्रीदिंग अपने आप चेंज होगी। बट जब हम मेक बिलीव गुस्सा करेंगे तो फिर वो ऐसे हो जाएगा। नहीं, जब आप नॉर्मली बात करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग तरीके से होगी, आपका ब्रीदिंग पैटर्न अलग होगा, आपकी वॉइस की पिच अलग अलग होगी। तो खुद को ऑब्जर्व करना या अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लेसन इन एक्टिंग। Sir, can you share some memorable incident with Vinay bhai? Memorable incident? I again broke, sir. Yes, you broke That's a Rajpur. broke the mold of at least calling him sir. You called him Vinay bhai and you called me sir. Very nice, very nice. अच्छा लगा. Progress.
विनय भाई के साथ अरे बहुत सारी मेमोरीज है यार। हाँ। उस इंसान ने ठोक पीट कर जो हमको ठीक ठाक बनाया है ना। बट आई थिंक ये एक मेमोरी है जो मैंने वो 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में भी बोली थी। हाँ। हम लोग एक प्ले कर रहे थे, नीम हकीम खतरा जान, हम्म, और उस प्ले का जो लीड जो मेन कैरेक्टर जो कर रहा था वो ठीक ठाक नहीं कर रहा था। ओके। और उसको विनय भाई का फीडबैक मैकेनिज्म तो आपको पता है कि अरे ठीक से करा रहा हूँ, अरे ऐसा नहीं, अरे वैसा नहीं। वो एक दिन वो तड़क गया, वो लड़का कहता मैं नहीं कर रहा, आप कर लो। तो ना हमको ये पता था पहले से ही कि ये तड़कने वाला है। अच्छा। और ये भी पता था कि अगर ये तड़क गया तो प्ले के 8 दिन पहले की बात है, 8 दिन भी नहीं थे शायद उस प्ले के, 5-6 दिन बचे थे। तो इतने छोटे गैप में अगर इस लीड, और ये पूरा प्ले उसी का था, ओके। फर्स्ट डायलॉग से लेके आखिरी डायलॉग तक वही आदमी था और हर सीन में वो कैरेक्टर था। तो मुझे पता था कि इतना डिफिकल्ट कैरेक्टर, इतना हाई एनर्जी कैरेक्टर, अब इसकी जगह अगर कोई करेगा इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो विनय भाई करेंगे। तो जैसे ही वो निकला वहां से बोलकर कि सर मैं नहीं कर रहा, आप देख लो, और प्ले है 7-8 दिन में, तो पता था प्ले तो होगा, प्ले तो कैंसिल नहीं हो रहा। आज तक हमारा ऐसा कोई प्ले कैंसिल हुआ नहीं है, चाहे जो हो जाए। तो मैं साइड में बैठा खुश, मैं कर रहा था छोटा सा कैरेक्टर, 2 सीन के लिए इन एंड आउट। तो मैं, और लिटरली यही होता था कि वो जब लड़का शुरू करता था रिहर्स करना, तो हम लोग आराम से बैठे रहते थे कि इसका सीन तो चलेगा, 1-2 घंटा फीडबैक दे गए सर, फिर चेंज कराएंगे। वो 15 मिनट में निकल गया तो सब ऐसे हो गए कि अब क्या अब विनय भाई करेंगे, अब हम सब देखेंगे सीखेंगे। तो विनय भाई आए, हॉल के सेंटर में रुके, हम सब अपने अपने विंग्स की जो हमारी ब्लॉकिंग थी, कुछ लोग वहाँ कुछ लोग यहाँ, तो मैं लेफ्ट साइड में विंग के पास बैठा था। तो ऐसे शुरू किया उन्होंने, ऐसे पूरे कमरे को देखा, फिर ऐसे आके उनकी नजर मेरे पे रुकी, बाबू तुम करते हो? मैं लिटरली क्या, मैंने किस बाबू से बात कर रहे हैं? मैं क्या कर सकता हूँ भाई, 7 दिन में प्ले है, इतने 70 मिनट का प्ले है, मैं कहाँ याद कर लूंगा। अब उनको एक चीज पता थी कि मुझे डायलॉग बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, गॉड्स ग्रेस, टच वुड, मैं डायलॉग आज भी बहुत जल्दी याद कर लेता हूँ। तुम कर सकते बाबू। सर भाई मैं प्ले में हंस दूंगा, बीच में मैं बहुत हंसता हूँ, मैं अपने लिए मैं बहुत फनी हूँ, मैं छोटा सा जोक क्रैक करूंगा, हंसूंगा बहुत ज्यादा, और आज भी होता है ये मेरे साथ। सर नहीं भाई, मैं स्टेज पर हंस दूंगा भाई, आउट एंड आउट फार्सिकल कॉमेडी। नहीं तुम नहीं हंसते, मैं हूं ना, मैं देख लेता, तुम नहीं हंसते, चलो रिहर्सल शुरू करो। भाई साहब जो पसीने छूटे हैं मेरे, तो वो एक मोमेंट था जब उन्होंने एनकरेज किया, लेकिन उसके अगले 5-6 दिन का जो रिहर्सल था, दैट वाज हेल, दैट वाज प्योर हेल। या वो बंदा सामने बैठा है, एकदम यहाँ सामने बैठा है, हम प्ले कर रहे हैं, और कॉर्नर ऑफ द आई से दिख रहा है कि वो लिखे जा रहा है, लाल कलम से लिखते हैं वो आदमी, हाँ, लाल कलम से लिख रहा है, और आप यू कैन सी पेजेस फिल्ड विद रेड। पता है ये सारा फीडबैक मेरे लिए आने वाला है, क्योंकि आप एक नया एक्टर, यही मैं ही हूँ, मेरे लिए फीडबैक आ रहा है, संदीप डज नॉट नो दिस, संदीप इज नॉट डूइंग दिस प्रॉपरली, संदीप थिंक्स ही इज अ स्टार, संदीप सुपरस्टार, संदीप सुपर डुपर स्टार। तो इट वाज लिटरली, मतलब आई वाज गोइंग टू बी दैट गाय पार्ट 2 की, मैं ऐसा नहीं कर रहा भाई, अब आप कर लो। बट आपके गुरु ने आप पर फेथ दिखाया है, तो आपको करना है, बैकआउट करना तो कभी हमने सीखा नहीं। तो 5-6 दिन के रिहर्सल के बाद जब वो प्ले हुआ, और उस प्ले के एंड में जो तालियां बजी, मतलब दैट मोमेंट आई थिंक आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट इन माय लाइफ, इट्स वन ऑफ माय कोर मेमोरीज, एंड दैट चेंज्ड मी एज एन एक्टर। वो दिन मैं जो सीरियस हुआ एक्टिंग को लेके, तब तक वो आपका है ना कि करना है, लेकिन थोड़े से अब यूथ में है तो डायरेक्शन लेस हैं, थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हैं, और खुद को थोड़ा कम आंकते हैं। लेकिन उस दिन भाई साहब जो हुआ, और वो तुम करते बाबू वाली जो कहानी शुरू हुई हमारी, वो कहीं और ले गई, मेरी लाइफ को, मेरी ट्रेजेक्ट्री को, मेरे करियर को कहीं और ले गई। So yeah, that's one core memory with the It gave you clarity. It gave me the boost that I needed.
देखिए क्लैरिटी आपको होती है कि आप अच्छे एक्टर हैं, लेकिन एक इतना बड़ा आदमी जब आप पर भरोसा करता है ना और बोलता है कि तुम कर सकते, तो फिर आप अपने लिए नहीं, आप उस भरोसे के लिए करते हो। Definitely, sir. If given a chance today, would you do theatre again? डेफिनेटली अब बस मौका ऐसा है कि वो एक साथ इतना सारा वक्त निकाल पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट जस्ट करियर, इट्स ऑल्सो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रैवल। मैं एक साथ एक महीना एक शहर में होता ही नहीं हूँ, तो मैं कहाँ कैसे रिहर्स करूँ। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी व्हेन आई डू हैव द लग्जरी ऑफ टाइम, आई वुड लाइक टू गेट बैक ऑन स्टेज। How was your transition from theatre to films? I think I wanted to do cinema always. मतलब मुझे ये था कि मुझे eventually सिनेमा करना है, फिल्म्स करनी है, I want to act for the screen. And जितना सीखा हूँ मैं उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा सिनेमा को देखकर सीखा। मैंने विनय भाई से सीखा है, एक्टिंग की है, थिएटर करते करते सीखा है, लेकिन जो वॉच एंड लर्न वाला जो मेरा मैकेनिज्म रहा है वो सिनेमा को देखकर ही रहा है। And I have been enthralled by the larger than life cinema that happens. So while after a point of time जब आपको वर्ल्ड सिनेमा की समझ आती है, जब इंटीमेट सिनेमा की समझ आती है, तो फिर बात अलग होती है। बट आपका इनिशियल, जैसे मैंने कहा मेरी पहली फिल्म थिएटर में अजूबा थी, वो एक लार्जर देन लाइफ फिल्म थी। तो वो लार्जर देन लाइफ काम करने का जज्बा और एक इमोशन तो हमेशा से था। तो जब वो करने का मौका मिला तो आई लैप्ड इट अप लाइक a hungry man laps up his food. And थोड़ा सा चैनल करना पड़ता है अपने परफॉर्मेंस को बिटवीन थिएटर एंड फिल्म्स। तो जो मैं समझ सकता हूँ वो ये था कि आप अगर थिएटर में 100 दे रहे हैं तो आपको सिनेमा में या कैमरा पे 30 देना है या 40 देना है, डिपेंडिंग। बट वो खुद को कंट्रोल कर पाना ये थोड़ा सा ना इनिशियली मेरे लिए मुश्किल था। तो मेरे इनिशियल फ्यू परफॉर्मेंसेस जब मैं भी ऊपर हटकर देखता हूँ तो काफ़ी लाउड थे। इनफैक्ट अंटिल रिसेंटली भी मैं खुद को चैनल कर ही रहा था। अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि अब पहुँच गया हूँ 30-40 वाले जोन में। बट वो और 30-40 में कौन सा 30-40 देना है? आपके पास है 100, ये वाला 30 देना है, ये वाला 30 देना है या ये वाला 30 देना है, आपको नहीं पता। तो या इन दोनों के बीच का कोई 30 देना है। बट वो जब आप समझ जाते हो तब आपके परफॉर्मेंसेस में वो एक निखार आता है, वो एक फिनेस आती है, विच आई कैन होपफुली सी, थोड़ी सी आ रही है। Wonderful, sir. How do you prepare for your characters? Do you have any pre-preparation, or like some actors they listen to music before? How are the few moments before the lights get switched on, before you hear action? What goes on in those moments in your head? I try to remain as calm as possible. Okay. मेरे लिए कोई calming music per se नहीं है। हाँ. मैं अपनी vanity में I try to remain as calm, watch some content that is similar to my character. Okay. Not to get inspired from that particular actor's performance, but you know, to be in that zone. You know what I'm saying? Yes. तो मैं अपने जोन वाला कंटेंट देखता हूँ, अपने जोन में रहता हूँ, स्क्रिप्ट जितनी बार हो सके मन में याद करना या पढ़ के याद करना वो कर लेता हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डायलॉग्स मुझे ठीक ठाक याद हो जाते हैं, तो बार बार स्क्रिप्ट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मन में बस वो याद करते रहो, आप मेंटली खुद को प्लेस करते रहो और फिर आप जाकर डायरेक्टर के हाथ में सब छोड़ दो। वो जानता है, वो उसका बेबी है। आप बस एक नर्स हो जो उस बेबी को बाहर ला रही है। फिल्म वो सीन का लिखा हर डायलॉग उसका बेबी है। तो यू गिव इट ऑल टू द डायरेक्टर एंड लेट हिम मोल्ड यू। वेरी वेल गुड सर। Sandeep, is there any with which director did you have a lot of fun or like working? Let me ask it again. In which film, or is there any memorable, the most memorable shooting experience for you till date? I think the most memorable character जो मैंने किया था, Okay. मैं आपको वो बता सकता हूँ ठीक है. कि ये जो एक मेरी वेब सीरीज आई थी कॉल्ड 3 C's, अच्छा. सोनी लिव पर आई थी और उसमें मेरा कैरेक्टर का नाम था बॉब इजाबेल। Okay.
वो एक फिशरमैन है हाँ. और फिशरमैन के आड़ में वो स्मगलिंग करता है। Okay, interesting. वो डायमंड स्मगलिंग करता है और उसकी एक रुद्राक्ष की माला होती है जो इस शो की जो हमारी फीमेल लीड्स थी वो चुरा ले जाती है और उस रुद्राक्ष की माला में अंदर हीरे होते हैं, 25 करोड़ के हीरे। तो वो एक नंबर का पागल आदमी है। वो ऐसे से बात करेगा, फिर सडनली एक्साइट हो जाएगा, फिर ऐसे बात करेगा और बात करते करते किसी के हाथ पे चाकू मार देगा। I saw that in your show reel. या तो उस कैरेक्टर के ना 2 बहुत लंबे लंबे मोनोलॉग्स थे और अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल एडिट में आ नहीं पाए। बट वो जब हम शूट कर रहे थे ना तो पूरा सेट हंस रहा था। तो वो एक थिएटर वाली फील आई कि आप शूट तो कर रहे हो, सिर्फ कैमरा के लिए शूट कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टर ने आपको दे दिया खुली छूट और आपको एक सांस में पूरा मोनोलॉग बोलना है। Okay. और आप एनिमेटेड भी हो, फिर बैठे भी हो, आपको लाइट भी लेनी है और कैमरा फ्रेम से बाहर भी नहीं जाना है, बट एट द सेम टाइम बी इन योर एलिमेंट। तो वो करते हुए जो मुझे मजा आया वो आई थिंक इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स एंड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट शूटिंग एक्सपीरियंसेस। It's nice. So as actors, we are all, we have to constantly be in touch with our emotions, and we need to, we need to emote on command. Yes. So was there any instance where you couldn't do that, where you struggled, and how did you overcome that? And also one more question: how do you prevent or manage emotional burnout? Good question. Yeah, there have been times where as an actor you struggle to portray your emotions, but what has worked for me is just trying to find some sort of stillness, and sometimes I just boost myself up, when you find a quiet corner and then you boost yourself up. Come on, 2-4 गालियां निकालो, आप कर सकता है, तू करेगा, चल, and then it happens. But then there are scenes that are really emotionally demanding, and when you really need to bring out a side that does not require you to be boosted up so much, then you go to a quiet space and you calm yourself down, and then you reach that point in your mind जहाँ से वो emotion का trigger होता है। और ये एक चीज़ मैंने हाल ही में सीखी है जो बहुत important है। हम लोग as actors ना कई बार डायलॉग्स का इमोशन एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट हम उन डायलॉग्स के पीछे का मीनिंग जो है वो एक्सप्लोर नहीं करते। और वो मीनिंग मेरे हिसाब से कैसे एक्सप्लोर होता है कि आप उसे अपनी भाषा में बोलें या अपनी भाषा में समझें। अब अगर इंग्लिश में कोई लाइन है जिसे आपको बोलनी है तो आप बोलेंगे उसे इंग्लिश में, लेकिन अगर उसका मीनिंग आपने अपनी भाषा में मन में सोच लिया और आपने वो एक बार बोलकर समझ लिया कि हाँ मेरी भाषा में बोलूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, और फिर आप इमोशन वही रखें, बस वर्ड्स की चादर जो है वो इंग्लिश की ओढ़ दें उसको, तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस हो पाता है। यू रियली कैन चेंज व्हेन यू इंटरनलाइज इट इन योर लैंग्वेज। मैं हिंदी में सोचता हूँ, हालांकि विनय भाई अग्री नहीं करेंगे, इंग्लिश वाले हैं भाई तुम तो वो बोलेंगे, बट मैं हिंदी में सोचता हूँ। अच्छा। और अगर आपकी लाइन हिंदी में भी हो सकती है, लेकिन उस भाषा में जैसे आप आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उसका मतलब समझें और उस मतलब को आप जब अपनी भाषा में अपने तरीके से बोलें तो कैसे बोलें वो आप सोचें। एक आध बार उसी तरह से बोल के उस तरीके को याद रखें और फिर उस पर बस वो शब्द जोड़ दें और फिर आप बोलें, देखिए आपका डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। I'll try this. You should. And have there been instances where you felt emotionally burnt out after shoots and after doing any character? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। फिजिकल बर्नआउट होता है where you are shooting back to back and then you just tired like hell. But I think ये थिएटर की ट्रेनिंग है कि बर्नआउट तक पहुंचने में वक्त लगेगा। हम यहाँ पर we have been baptized by fire. तो जितना बर्नआउट होना था यहाँ पे हो गया। हम बर्न करके ना, वो कहते हैं ना कि वो आप भट्टी में जलने के बाद ही सोना बनता है, तो अब खुद को सोना तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन उनको भट्टी जरूर बोल रहा हूँ। तो भट्टी में झुलसा के हमको निकाला है बाहर, तो उम्मीद करते हैं कि
बर्नआउट से तो हम काफी दूर रहे। आपने ज़्यादातर है ना आर्मी कैरेक्टर्स, आर्मी ऑफिसर कैरेक्टर्स, टेररिस्ट कैरेक्टर्स किए हैं ज़्यादातर। इज देयर एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर विच यू आर कवेटिंग, यू नो, योर ड्रीम कैरेक्टर यू वांट टू प्ले? वो माय ड्रीम कैरेक्टर, सच बताऊं तो मेरा ड्रीम कैरेक्टर है रावण। रावण? हाँ, मतलब वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है जिसे आई डोंट थिंक हम स्क्रीन पर एटलीस्ट या फोकलोर में भी पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाए। आई एम श्योर इंस्टेंसेस होंगे जिनके बारे में मैं नहीं जानता, बट एक बुक मैंने अभी हाल ही में पढ़ी थी, अभी अमीश त्रिपाठी की, जो राम, सीता और रावण के ऊपर 3 अलग अलग बुक्स हैं उनके, और फिर वॉर ऑफ लंका है। और उसी के साथ साथ मैंने एक बुक नरेट की है। मैं ऑडियो बुक्स भी नरेट करता हूँ, तो मैंने एक बुक नरेट की है जिसका नाम है अजय, पासों का खेल। ओके, पासो। व्हाट इज पासो मीन? पासे जो गेम खेला था, चौसर का गेम खेला था, द रोल ऑफ डाइस। तो अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उन लोगों ने चौसर का गेम खेला था, पांडवों और कौरवों ने, और उस गेम में पांडव अपना सब कुछ हार गए थे। तो ये जो पासों का खेल नाम की किताब मैंने रिकॉर्ड की, 26 घंटे की ऑडियो बुक है, ऑडिबल पे। उसमें ना, दैट इज अ बुक वेयर द एंटायर महाभारत has been narrated from the perspective of Duryodhan. Okay. What if Duryodhan was not exactly a villain? जैसे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में पेस्ट कर देते हैं ना कि रावण बुरा, राम अच्छा, दुर्योधन बुरा, अर्जुन और पांडव अच्छे। What if that was not the case? Okay. Because everyone has grey. Yes. कोई भी आदमी, at least to the best of my knowledge, पूरी तरह से ब्लैक नहीं हो सकता या पूरी तरह से व्हाइट भी नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी कुछ गलतियां की होंगी और रावण में भी कुछ अच्छाइयां होंगी। तो ये जो बुक थी, ये दोनों बुक्स, जो अमीश त्रिपाठी की वर्जन ऑफ रावण एंड आनंद नीलकंठन की बुक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दुर्योधन, ये आपको मौका देते हैं बहुत सारे टाइपकास्टेड और नेग्लेक्टेड कैरेक्टर्स को एक नई लाइट में देखने का। तो आप जब रावण के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ बुरा ही सोचते हैं ना, कि उसने सीता माता का अपहरण किया और राम जी के साथ युद्ध किया और वो मर गए। महातपस्वी है रावण, महातपस्वी है, वो महाज्ञानी है। और हाल ही में मैंने एक प्ले देखा था जो मेरे हिसाब से सबको देखना चाहिए, आशुतोष राणा जी का प्ले है, हमारे राम नाम का। उसमें उन्होंने जिस तरह से रावण को पोर्ट्रे किया है और जिस तरह से करना चाहिए कि वो राक्षस था, वो अहंकारी था, उसने घोर पाप भी किए, लेकिन उन पापों के पीछे की वजह शायद कुछ और थी। और मरने से पहले क्यों प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को उनके पास भेजा कि जाओ उनके चरणों में बैठो और उनसे राज्य कैसे चलाते हैं उसका ज्ञान। डू यू नो दिस? ये रामानंद सागर की रामायण के एंड में भी था। जब रावण मरने वाला होता है, लक्ष्मण को भेजा जाता है उनके चरणों में बैठ के उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का। और लक्ष्मण पहले बहुत वो हो जाता है कि यार मुझे आप इसके पास भेज रहे हो, इस नीच पापी दुष्ट के पास। श्री राम कहते हैं उसे कि ये अपने पापों का फल पा चुका है और मृत्यु लोक पहुंचे उसके पहले इसके जो सारे अच्छे गुण हैं उन्हें तुम अपनाओ जाके। और बिना किसी घमंड के, तो वो जब बैठता है इनिशियली रावण के पास तो वो बोलता है, I think he sits near his head, right? हाँ, तो बड़े बेमन से जाता है और बोलता है कि बताएं। नहीं बताता वो उसको, अपने अहंकार को तुम नीचे करो, ज्ञान लेने आए हो तो ज्ञान लेने वाली पोजीशन में आओ, फिर मैं बताऊंगा। तो आई थिंक ऐसा कैरेक्टर, इतना ज्यादा लेयर्ड कैरेक्टर अगर मुझे पोर्ट्रे करने का मौका मिले, I would love to do that. Fingers crossed. I would like to see you as Ravan. Why not? Why the hell not? 10 heads. Oh yes, oh yes. And there are also several interpretations of Ravan. You know, आप ऐसा कोई विलन जो रावण से इंस्पायर्ड हो और मॉडर्न डे रावण बने, आई डोंट नो। बाकी तो राइटर्स और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर है कि वो क्या किस तरह से सोचते हैं। That's true. How did you begin? You know, can you tell us a little bit about your initial days? How did you bag projects, and what was that time like for you?
See, when I moved to Bombay, it was a very lonely and a very difficult journey. हैदराबाद में तो आप जब तक हो आप अपने गुरु की, अपने पेरेंट्स की छाँव के नीचे ही हो। लेकिन जब आप वहाँ जाते हो तो जो तपती धूप आप पर पड़ती है वो एक अलग लेवल की बैप्टाइजेशन बाय फायर है। बट थैंकफुली यहाँ इस भट्टी ने हमें थोड़ा तैयार करके भेजा था, तो हम न ज़्यादा बिखरे न ज़्यादा टूटे। लेकिन द फर्स्ट 2 years वर वेरी डिफिकल्ट। जब आपके पास कोई काम नहीं है, आप कोई नेटवर्क के बिना गए हैं, और तब give auditions. Of course. There have been so many occasions where I have just sat outside an audition venue for 3-4 hours. Okay. और मुझे दिख रहा है कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो खराब काम कर रहे हैं और बार-बार रीटेक दे रहे हैं, जिस वजह से मुझे और लेट हो रहा है। लेकिन आप चुपचाप बस बैठे हो। मुझे एक बाइक का ऑडिशन अभी भी याद आता है। मुझे याद है एक बाइक की कॉर्पोरेट फिल्म थी जिसकी ऑडिशन के लिए मैं गया और कुछ 3-3.5-4 घंटे वेट किया मैंने वहाँ पे। थैंकफुली घर से टिफिन लेकर गया था, तो बाहर लिटरली वो इतना छोटा सा स्टूडियो होता है, एक छोटे से रेल के कंपार्टमेंट जैसा। अंदर ऑडिशन हो रहा है, बाहर 8 लोगों के बैठने की जगह है। 8 से ज़्यादा जो भी आया वो बाहर रोड पर बैठेगा। रोड पर भी 1 आध कुर्सियाँ लगा दी हम लोगों ने, एक गली में था। तो उस बाहर वाली कुर्सी पर बैठकर मैंने अपने टिफिन में से मैंने अपना खाना खाया और बैठा रहा। एक एक करके लोग जाते गए। मुझसे बाद में आए 1 आध और लोग, उन्होंने बोला भाई मैं चला जाऊँ क्या, मैं जल्दी से लेके आ जाऊँगा। मैंने कहा जा। 3 पेज का ऑडिशन था। जा दे। जब सारे लोग, मतलब वो कास्टिंग डायरेक्टर भी ऐसा था कि भाइयों 3 पेज एक साथ नहीं हो रहे हैं तो एक एक करके दे दो, मैं जोड़ लूंगा बाद में। 1 पेज का दो, फिर बाहर जाओ, किसी और का 1 पेज लूँ, फिर वो बाहर जाए, फिर तुम दूसरा पेज तैयार करके लाओ, ऐसा। मैं गया, मैंने कहा सर मैं 1 टेक में तीनों कर दूं, चलेगा? और मैं आखिरी बंदा था। I was one of the last people to get that audition. वो हंसने लगा। फिर सुबह से बैठा, कोई नहीं कर पाया 3 पेज 1 टेक में, तू करेगा? मैंने कहा सर एक कोशिश कर लूं। मैंने ना सिर्फ वो 1 टेक में ऑडिशन दिया, बल्कि पूरे इमोशन के साथ, और मतलब वो ऐसा दिया कि शूट कर रहा हूँ। उस कैमरामैन का ऐसे ऐसे मुंह खुला था थोड़ा सा, एंड इट वाज लाइक दे वर ऑलमोस्ट वेटिंग, ये अब goof up करेगा, अब goof up करेगा। 3 पेज तो नहीं बोल पाएगा ये एक साथ। 3 पेज एक साथ बोल टिल द लास्ट वर्ड। एंड मैंने आई सॉ देम ब्रीथ आउट, सांस रोक कर बैठे थे वो लोग मेरे टेक के लिए। और वो टेक खत्म हुआ एंड जो कास्टिंग डायरेक्टर थी वो उठ के खड़ी हो गई, हाथ मिलाया मेरे और कहते तुम शूट टेक पे फ्री हो ना? मैंने कहा हाँ मैं फ्री हूँ। मैंने कहा ये तो क्रैक कर लिया मैंने। 15,000 रुपए का ऑडिशन। तब आपके लिए वही बहुत मैटर करता है ना कि आप ये एक ऑडिशन क्रैक कर रहे हो। कॉल नहीं आया यार वहाँ से, मैं वेट कर रहा हूँ। हिमांशी या कुछ तो नाम था उस कास्टिंग वाली का, मैंने उसको मैसेज भी किया, उसने जवाब भी नहीं दिया। और इत्तेफाकन उसी के आसपास मैंने वॉइस डबिंग शुरू की थी। 1-1.5 महीने बाद मुझे आता है एक एड की वॉइसिंग का काम, और मैं जाकर देखता हूँ वही एड है जिसका मैंने ऑडिशन दिया था। एक बहुत ही दुबला पतला कम हाइट का आदमी सेलेक्ट किया उन लोगों ने, और बाहर बैठा प्रोडक्शन हाउस का एक लड़का था जिसने मुझे पहचाना। कहता आपने ऑडिशन दिया था ना इस एड का? मैंने कहा यार सैकड़ों बंदों ने ऑडिशन दिया था इसका, इसने मुझे पहचाना फ्रॉम एन ऑडिशन टेप। कुछ तो सही किया होगा। मैंने कहा हाँ दिया तो था, आपको कैसे पता? कहता है ब्रो वी फॉट फॉर यू, वी रियली वांटेड यू टू बी देयर, बट यू आर सो बिग, दैट बाइक इज 100 cc, you would have covered the bike completely, it will look like a cycle in front of you, how could we shoot with you bro? मैंने कहा बात तो सही कह रहा है यार। तो कई बार ऐसे होता है कि आप अपनी पूरी मेहनत करते हो, आप अपना जी जान लगा देते हो और काम भी अच्छा होता है, लेकिन कई चीजें होती हैं जो आपके फेवर में वर्कआउट एक साथ नहीं कर पाती। हाल ही में मेरे साथ हुआ ये कि मुझे अभी सलमान खान की जो फिल्म आई थी सिकंदर, हाँ। उसमें एक कैरेक्टर के लिए मुझे फाइनलाइज कर दिया गया था। रेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी ने फाइनल किया, वीआर मुर्गदास के साथ मीटिंग भी हो गई, बोले डन सर यू आर लॉक्ड। हम शूट डेट्स का वेट कर रहे हैं, सितंबर में नहीं हुई, अक्टूबर में नहीं हुई, नवंबर में नहीं हुई, दिसंबर में नहीं हुई, जनवरी में फाइनली शूट डेट है। और उसी दिन जिस दिन वो शूट थी
मैं सलमान खान के भाई के साथ शूट कर रहा था हैदराबाद में मेरी तेलुगु फिल्म के लिए अर्जुन सन ऑफ वैजयंती। तो मैंने कहा ये दोनों भाइयों ने साथ में डेट दे दी यार। और इसमें मेरा कैरेक्टर लॉक था, मैं विलन का काम कर रहा था और मैं लगभग बाकी पूरी फिल्म की शूट मेरी हो चुकी थी, वो एक ही दिन की शूट बाकी थी। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया कि सर मुझे सलमान के साथ फिल्म मिल रही है और वो मेरे को मना करनी पड़ेगी जस्ट टू शूट विद सोहेल खान। कहते हैं सॉरी सर, ना सोहेल भाई डेट चेंज कर रहा है ना सलमान भाई डेट चेंज कर रहा है। How did you manage? I did not. I had to let go of the Salman Khan film. I told Sohail bhai on the shoot, सर आपकी वजह से आपके भाई के साथ मैंने फिल्म नहीं की। कहते अरे यार सैड, सॉरी कांट हेल्प इट। बट ऐसा होता है कि आप अपना बेस्ट दे देते हो, लेकिन सितारे जो हैं वो even they need to align. So sometimes the stars align, sometimes they don't. Okay. So for this next set of questions, just be very quick. You can answer like in a sentence or in a word. It's up to you. Let's go. Yeah. How many languages can you speak? 3 languages fluently, Hindi, English and Telugu, और सिंधी और पंजाबी मैनेज कर लेता हूँ। अच्छा. What's your comfort food? राजमा चावल। Do you have any cheat days at gym? Cheat days at gym नहीं होता, cheat days in food होता है। So I have my cheat days, cheat days, cheat meals सब होते हैं। Mostly when I'm traveling, तो आप हैदराबाद आओ और अच्छी सी एक गुंटूर इडली ना खाओ जिसमें घी है, खारम पूड़ी है, तो क्या बात हुई। मुझे चटनीज की गुंटूर इडली बहुत पसंद है। एक आध बार मैं बिरयानी भी खा लेता हूँ, तो वो हो जाता है। But then you make up for it in the gym. One word to describe the current season of your life. Exciting. An actor you want to work with. Allu Arjun. Director you enjoyed working with the most. Vinay Verma. Director you want to work with in the future. S.S. Rajamouli. Films, dubbing or theatre. No. मैं नहीं होता भाई। नहीं होता। I plead the fifth on this. मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ। Okay. Favorite genre. Favorite genre? एक ही genre pick करना है तो drama. Favorite actress. Favorite actress? अभी यार I saw Sai Pallavi and I was floored man. So I think Sai Pallavi. Biggest inspiration. I think अगर पीछे से इंस्पायर हो तो शाहरुख खान से होते हैं। Okay. That rags to riches story and the way he still carries on, I think that's an inspiration. Current song you're listening to. I'm listening to a lot of songs, but I think the background track of this film Kingdom, जो विजय देवरकोंडा की आ रही है, उसका एक ही background track अभी रिलीज हुआ है। That track it has a lot of range, so yeah, that's on your loop. Yep. Rural or urban life? Urban. मैंने rural life ज़्यादा experience की नहीं। Okay. मेरे को थोड़ा comfort चाहिए। Ideal vacation spot? Bali. Favorite way to waste time online? Well, keep doom scrolling यार, reels देखते जाओ, आप हंसते जाओ और cringe content देख के खुद को बोलते हैं क्या कर रहे हो यार तुम लाइफ में, मतलब। But हाँ, उससे ज़्यादा अच्छा वेस्ट करने का, टाइम वेस्ट करने का तरीका नहीं है और काफ़ी अच्छा सीखने का तरीका भी है, to be honest। मैं cringe content भी देखता हूँ, but then there are also a lot of inspirational and motivational reels that I come across and educational content भी है। तो algo knows कि मैं जब तक थोड़ा सीखूँ ना तो मैं फिर बंद कर दूँगा। तो बीच में मुझे एक थोड़ा सा लर्निंग मोटिवेशनल वाली रील भी भेजती रहती है और वर्कआउट रील्स भेजती रहती है, तो अपना फॉर्म सुधारना और कोई एक नई एक्सरसाइज का वेरिएशन सीखना, या आई कीप डूइंग दैट। What's your breakfast of champions? मेरा ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस इज अ 6 egg omelette। 6 egg omelette, okay. उसमें से 4 होल होंगे, 2 सफेद होंगे। Okay. If you had been arrested with no explanation, what would your friends and family assume that you had done? किसी को पीटा होगा ऐसा, बहुत ज़्यादा पीटा। Violent, huh? नहीं, मेरे अंदर का जो जानवर है ना वो बहुत सालों से डॉर्मेंट है। तो अगर किसी दिन या तो ठोक दिया होगा किसी को गाड़ी से। I'm not a very good driver. Okay. तो when my father and even my wife now when they sit with me, वो एक हाथ हमेशा हैंडल पे होता है, ऐसे होता है। मुझे खुद में बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं देखो यार मैं सट से निकालूंगा और फट से निकालूंगा, बट वो आसपास वाले लोगों को अगर मैं बोलूं कि मैं जेल में हूं तो सबसे पहले यही शायद पूछेंगे कि किसको ठोक दिया। Okay. Books or movies?
I would love to say books, but I watch more movies than I read books. So cinema. Okay. Biggest fear. Being alone. Purpose of your life. Summing it up in one sentence would be difficult, but I think purpose of my life is to fulfill my destiny, make a change, give back to society, and love. I think I just there's a lot of love that I want to give and receive. That's the purpose of my life, and also to act. I think I'm born to act. Wonderful. Okay. So with this segment, I would like to ask you to do a voiceover in any character which you enjoy doing, and maybe you could say your tagline. So we always begin with hello, namaste, adab. So Okay. can you do that in a voiceover of any character which you are comfortable with? Comfortable, and one of my most memorable characters has to be Pushpa. Okay. Hello, Arjun. So, there you go. Hello. Namaste. Adab. So even when you're dubbing, you do all these expressions when Oh, you're yeah. in the dialogues? Yeah. See, the best part about being an actor and a dubbing artist is both these professions complement each other. Mhm. Being a voice artist, when I am acting on screen, I know मुझे pause कब लेना है, कहाँ gravitas लाना है आवाज में, और मेरा कैरेक्टर को कैसे हाइटन करना है अपनी आवाज से. एंड जब मैं डब कर रहा हूँ तो मैं एक्टर हूँ, Yes. तो मुझे उस एक्टर की परफॉर्मेंस के साथ सिंक करने में बहुत आसानी होती है. Okay. तो आपने एक बार उस कैरेक्टर को पकड़ लिया, चाहे वो कर कोई और रहा है, लेकिन जब आपने उसको पकड़ लिया तो देन यू टू आर इन सिंक. तो जब मैंने वो पुष्पा किया था तो मुझे याद है मैं वो कॉटन लगा कर जब मैं बात कर रहा था, माय डबिंग डायरेक्टर वाज सो हैप्पी विद मी एंड शी वाज लाइक भाई तू सही कास्टिंग है यार इसके लिए. तो मैं पुष्पा भी बना हुआ था, पुष्पा का फैन भी बना हुआ था, और वहाँ पे हाई 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 कर रहा था, मैं भी यहाँ पे हाई 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 कर रहा हूँ. तो या इट वाज आई थिंक दैट्स वन वेरी वेरी मेमोरेबल कैरेक्टर दैट आई लव. Okay. Would you like to give any advice to our audience and to upcoming actors? Oh, lots of advices. I think बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तैयार हो. I think एक होड़ है अभी लोगों की जिन्हें एक्टर बनना है, लेकिन एक्टर बनने के लिए क्या करना है उन्हें पता नहीं. Advice for young actors is lots of advices. I think the first thing is that they need to be prepared. मेरे जैसे मैं बोला था ना, मैं एक्टिंग करूंगा, मॉडलिंग भी करूंगा, मैं करता हूँ बोल के मैं पहुंच गया था विनय भाई के पास. अगर मुझे तब विनय भाई जैसा गुरु नहीं मिलता जो मुझे मोल्ड करके समझाता है एक्टिंग क्या होती है, थिएटर क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, एक एक्टर को तैयारी कैसे करनी होती है. एज आप ना और कोई भी प्रोफेशन कर लो, जॉब कर लो, बिजनेस खोल लो, कुछ भी कर लो, आपका प्रोफेशन और आपका पर्सनैलिटी जो है वो अलग अलग होता है. आप जूते बेच रहे हो, आप यहाँ अंदर से कितने अच्छे आदमी हो आपको फर्क नहीं पड़ता. आप किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हो या किसी आईटी फील्ड में काम कर रहे हो, यू आर ओनली योर जॉब देयर एंड एज अ पर्सन यू आर समवन एल्स. बट व्हेन यू आर एन एक्टर, आपकी पर्सनैलिटी ही आपके कैरेक्टर के साथ थोड़ी बहुत मेल जोल खाती है. सो ईच ऑफ योर कैरेक्टर्स इज एन एक्सटेंशन ऑफ योरसेल्फ. तो जब पेड़ ही स्ट्रांग नहीं होगा तो उसका एक्सटेंशन, उसकी जो ब्रांच है वो कैसे स्ट्रांग होगी. तो आपको अपना जो तना है, अपनी जो जड़ें हैं, उनको मजबूत करना है, ताकि फिर आपका जो हर एक्सटेंशन है, आपकी हर ब्रांच जो है वो भी उतनी हेल्दी हो और उसमें से उतनी अच्छे फ्रूट्स भी निकले. तो तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है. और रील्स पे सिंक में बोलना एक्टिंग नहीं होती है. डब करना, डब स्मैश पे डब करना और एक्चुअल लाइफ में डब करने में बहुत फ़र्क होता है. एक्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एक्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट they don't need to be desperate for work. They need to improve themselves. और आज की तारीख में तो दुनिया इतनी बदल चुकी है that आप कहीं से भी अपना कंटेंट बना सकते हैं, कहीं से भी खुद को प्रूव कर सकते हैं. You don't need to be desperate and go out looking for work or beg for work. There are several avenues. But अगर आपको यही करना है तो आप पकड़बंदी के साथ यही करें और अलग अलग तरीकों से करें. सिर्फ थिएटर करना है, आप सिर्फ थिएटर करें, लेकिन साथ में कुछ और फिगर आउट करें कि आपकी पेट की भूख जो है वो मिटी रहे.
नहीं तो पेट की भूख फिर जब ओवर पावर कर जाती है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है. डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई बट ऑल्सो फिल योर स्टमक. दैट्स इम्पोर्टेंट. Happy stomach, then I can focus on the dreams. एग्जैक्टली. वो अगेन प्योरिस्ट होते हैं जो भूखे पेट भी काम कर लेते हैं, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम योर बॉडी गिव्स अवे, योर बॉडी योर माइंड गिव्स अवे. सो कुछ दिनों के लिए चल जाता है कि आपने मतलब एक लीप ऑफ फेथ ले ली और कुछ महीनों में कुछ फिगर आउट कर लिया तो अच्छी बात है. जैसे मेरे साथ भी अगर इनिशियल 2 साल में ही मुझे वॉइसिंग करियर का सपोर्ट नहीं मिलता तो एज एन एक्टर मैं शायद आज तक सस्टेन नहीं कर पाता. तो you need to figure out a way that you can sustain yourself. Do you ever think of having a backup plan? A lot of people suggested that I have backup plans, but I never wanted plan B. Okay. मेरे लिए plan B जो बोल सकते हैं या plan A1 जो बोल सकते हैं वो वॉइसिंग थी, जो सेम परफॉर्मिंग फील्ड से ही रिलेटेड थी, तो मैंने हाँ बोली उसके लिए. और डबिंग करते करते भी मैंने एक्टिंग की और एक्टिंग करते करते भी मैंने एक्टिंग ही की. तो मेरे लिए वही था. और नहीं मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी प्लान बी की और कभी मैंने सोचा भी नहीं मुझे कुछ और करना है. Thank you very much, Sandeep, for coming on to the show. My and pleasure. Before we leave, one last question. How do you want to be remembered? Oh, very interesting. I would like to be remembered as someone who was very honest. उसने एक्टिंग की तो बड़ी ऑनेस्टी के साथ की, उसने प्यार किया तो बड़ी ऑनेस्टी के साथ किया, उसने लोगों के साथ जैसा भी बर्ताव किया, he was very honest. आदमी अगर अच्छा लगा तो अच्छा लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा, लेकिन आदमी ऑनेस्ट था. ऐसा बोले मेरे बारे में तो मेरे लिए काफ़ी है. और साथ में अगर एक बहुत अच्छा एक्टर और बहुत अच्छा बाप और बहुत अच्छा पति भी बोल दे तो मैं माइंड नहीं करूँगा. मेरे को mind. Thank you so much, Sandeep. And that's all for today's episode. Catch you in the next one.